آداب ناظرین، ایک جیتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبرنامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا بھر میں ووہان شہر 2019 ماہ دسمبر میں نکلا ہوا کورونا وائرس، کورونا وبا کووڈ-19 جو ساری دنیا میں قہر برپا کر چکا ہے، جس کے سبب کروڑوں افراد اس وبا کی لپیٹ میں ہیں اور لاکھوں افراد اس وبا سے لقمہ اجل بھی ہو چکے ہیں۔ وہیں پر کورونا وبا کی دوسری لہر کا قہر بھی جاری ہے۔ اسی طرح ناظرین، محققین اور سائنسدانوں کی جانب سے اس وبا کے خاتمے کے لیے دوائی کا، ویکسین کا بھی ایجاد کیا ہے۔ ساری دنیا میں اس وبا کے خاتمے کے لیے ویکسین کا ٹیکہ اندوزی کی جا رہی ہے۔ وہیں پر اندرون ملک بھارت میں بھی 16 جنوری سے کورونا وائرس کی ٹیکہ کاری مہم کا آغاز ہوگا۔ ملک میں کورونا وائرس کے خلاف ٹیکہ کاری مہم 16 جنوری سے شروع کی جائے گی اور سب سے پہلے تقریباً 3 کروڑ طبی عملہ اور صف اول میں تعینات اہلکاروں کو ٹیکے لگائے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے یہاں ہفتے کے روز ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کی صورتحال اور ویکسین کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ آنے والے تہواروں کے پیش نظر لوہری، مکر سنکرانتی، پونگل، ماگھ بیہو وغیرہ کے بعد 16 جنوری 2021 سے ٹیکے لگانے کا کام شروع کیا جائے گا۔ ناظرین، صحت عامہ کے ادارے اور فرنٹ لائن پر تعینات افراد کے بعد 50 سال سے زائد عمر کے افراد اور 50 سال سے کم عمر کے ان افراد کو ویکسین کے لیے ترجیح دی جائے گی جو کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 27 کروڑ ہے۔ حکومت نے کہا کہ قومی ریگولیٹر نے 2 ٹیکوں کو وی شیلڈ اور کو ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے، جو حفاظت اور مدافعتی نظام کی کسوٹی پر کھرا اترتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح مہاراشٹر میں کورونا وائرس کے مزید 203 نئے مثبت مریض اور اس وبا سے 3 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 203 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ اس موذی وبا نے مزید 3 مریضوں کی جان لے لی ہے۔ ناظرین، دنیا کے پاورفل ملک امریکہ میں کووڈ-19 سے اب تک 3.72 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 سے شدید طور سے دوچار امریکہ میں اس موذی وبا سے اب تک 3.72 لاکھ مریض ہلاک ہو چکے ہیں، جہاں پر امریکہ جو ساری دنیا میں پاورفل مانا جاتا ہے، جہاں پر اس وائرس کی وبا سے لاکھوں افراد لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکس یونیورسٹی کے سینٹر فار سائنس اینڈ انجینئرنگ CSE کی جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 3,72,384 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 2,21,32,231 ہو چکی ہے۔ امریکہ کی نیو یارک، نیو جرسی اور کیلیفورنیا جیسی ریاستیں کورونا وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اس کی لپیٹ میں ہے۔ صرف نیو یارک میں ہی 39,471 مریض کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے اب تک نیو جرسی میں 19,854، کیلیفورنیا میں 29,627، ٹیکساس میں 30,313 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ فلوریڈا میں کووڈ-19 سے 22,804 مریضوں نے اپنی جانیں گنوا دی ہے۔ اس کے علاوہ ایلینوائے میں 19,210، میشیگن میں 14,145، میساچوسیٹس میں 13,074 اور پینسلوانیا میں 17,626 مریض لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ برطانیہ میں پائے جانے والے کورونا وائرس کے نئے اسٹرین کی تصدیق کیلیفورنیا، کولوریڈو اور فلوریڈا میں کی گئی ہے۔ کورونا وائرس کا یہ نیا اسٹرین 70% زیادہ متعدی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ملک میں فائزر اور میڈرنا
कि कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के बाद वैक्सीनेशन की मुहिम भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों से मेड इन इंडिया अपनाने की अपील की है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तहज़ीब और सक़ाफ़त की बैरून मुल्क अपनी मुनफ़रिद शनाख्त बनाने के लिए बैरून ममालिक में रह रहे हिंदुस्तानियों की तारीफ़ करते हुए इनसे मेड इन इंडिया हुकूमत की जानिब से तैयार करदा मसनूआत का इस्तेमाल करने की आज अपील की, ताकि ब्रांड इंडिया की शनाख्त को मज़ीद तक़वियत मिल सके। प्रवासी भारतीय दिवस पर मुनक़िदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जब हिंदुस्तान खुद इंसार बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका किरदार अहम है। जब आप मैदान मेड इन इंडिया मसनूआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तब आपके आसपास रहने वालों में भी इन पर एतमाद बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया मसनूआत चाय से लेकर कपड़ों और अद्वियात तक कुछ भी हो सकती है। इससे मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में सरमायाकारी करने, बैरून मुल्क कमाई की रकम मुल्क में भेजकर मुल्क की तरक्की में ताउन देने और कोविड-19 वबा के दौरान PM केयर्स फंड में अतिया देने के किए गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की तारीफ़ की और कहा कि आज खाना हो या फैशन, ख़ानदानी या कारोबारी इक़दार हों, बैरून मुल्क में मुक़ीम हिंदुस्तानियों ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियत की तशहीर की है। नाज़रीन, अमेरिका का ताइवान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने ताइवान पर आयद तमाम पाबंदियों को ख़त्म करते हुए बाहमी ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अपने एक सरकारी बयान में इस बात का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि मैं ताइवान पर आयद तमाम पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव ब्रांच एजेंसियों को ताइवान के साथ ताल्लुक़ात के बारे में इन रहनुमाना हिदायत पर गौर किया जाना चाहिए, जो पहले वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी की गई थी। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। मरहलेवार बिजली बहाल की जा रही है। हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब मुल्क के मुतअद्दिद इलाक़े तारीकी में डूब गए हैं। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब बिजली के ट्रांसमिशन लाइन अचानक ट्रिप कर गई, जिसके नतीजे में मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। इतवार की सुबह मुख्तलिफ शहरों में मरहलेवार बिजली की बहाली शुरू होने की इत्तलात मिली हैं। वज़ारत तवानाई के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है कि इस्लामाबाद समेत कई शहरों में जुज़वी तौर पर बिजली बहाल कर दी गई है, ताहम मुकम्मल बहाली में कुछ वक्त लगेगा। नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की रात 11:41 पर गदू बिजली घर में फ़नी खराबी के बाद मुल्क के हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, कश्मीर और कोयटा समेत चारों सूबे में ब्रेकडाउन रहा। पावर डिवीज़न के एक तर्जुमान के मुताबिक बिजली के तरसीली निज़ाम में फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 पर आने की वजह से मुल्क में बिजली का ब्लैक आउट हुआ है। नाज़रीन, इंडोनेशिया का मुसाफिर तैयारा समंदर में गिरकर तबाह, मलबे की तलाश जारी है। नाज़रीन, इंडोनेशिया के एक एयरलाइन के मुसाफिर बरदार तैयारे के गिरकर तबाह होने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसमें 62 मुसाफिर और अमले के अफराद मौजूद थे। खबर रसां इदारे AFP ने इंडोनेशिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बोदी कारिया सुमादी का हवाला देते हुए बताया कि खदशा है कि तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। वज़ीर के मुताबिक तैयारे में मुसाफिरों की कुल तादाद 50 थी और अमले के 12 अफराद सवार थे। इन्होंने कहा कि मुसाफिरों में 7 बच्चे और 3 नौमौलूद भी शामिल थे। AFP के मुताबिक फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने दिखाया था कि तैयारे ने उड़ान भरने के 4 मिनट बाद गोता खाया। हवाबाजी का डेटा इकट्ठा करने वाले वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 का कहना है कि जहाज़ 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 250 फीट नीचे गिर गया। इसके बाद जहाज़ का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। इंडोनेशिया के निजी टेलीविज़न नेटवर्क कोम्पास TV ने एक मुकामी
मछेरे का हवाला देते हुए बताया कि उन्हें जकार्ता के साहिल के करीब वाक़ जजीरे के पास से कुछ मलबा मिला, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं की कि अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई थी कि वो लापता तैयारे का मलबा ही था। इंडोनेशिया की वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान आदित्य इरावाती का कहना था कि इंडोनेशिया की इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाली एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी कमीशन भी तहकीकात कर रही है। इनका मजीद कहना था कि जहाज़ का आखिरी राब्ता मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:40 पर हुआ था। एयरलाइन के पास 19 बोइंग तैयारे हैं और ये इंडोनेशिया और जनूबी एशिया में मुख्तलिफ मंजिलों तक सफ़र करते हैं। एयरलाइन इंतज़ामिया का कहना था कि वो राब्ता मुनक़ता होने की तहकीकात कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 ईस्वी में लाइन एयर का बोइंग 737 मैक्स तैयारा जकार्ता से उड़ान भरने के 12 मिनट बाद जावा समंदर में जा गिरा था, जिससे 192 अफराद हलाक हो गए थे। ये मामूल की 1 घंटे की परवाज़ थी। इसके बाद इथियोपिया से होने वाले वाक़े की वजह से अमेरिका कंपनी बोइंग पर $2.5 अरब के जुर्माने आयद किए थे। बोइंग पर इल्ज़ाम था कि इसने 737 मैक्स के मॉडल के बारे में मुतल्लिक़ा हुक्काम को धोखे में रखा। इन दोनों वाक़यात के बाद बोइंग पर दुनिया भर में पाबंदी लगा दी गई थी। नाज़रीन, दुबई में 3 बरस तक किराए में इजाफे पर पाबंदी का कानून नाफिज किया गया है। नए कानून से दुबई में सरमायाकारी का हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात दुबई में 3 बरस तक किराए में इजाफे पर पाबंदी के कानून का मसवदा तैयार कर लिया गया है। दुबई में गैर मनकुला जायदादों के इदारे के डायरेक्टर जनरल सुल्तान बती बिन मजरन ने बताया कि कानून के तमाम दफात पर बहस मुकम्मल करके उसूली मंजूरी दे दी गई है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक सुल्तान बती ने बताया है कि नए कानून में कहा गया है कि मकान और दुकान के मालिक को किराए नामे पर दस्तखत की तारीख से 3 बरस मुकम्मल होने से कबल इजाफे की इजाज़त नहीं है। इदारे के डायरेक्टर जनरल ने मजीद कहा कि नया कानून तैयार हो चुका है। इसके लाहे अमल का निफाज हमारे इदारे और किराए तनाज़ात निपटाने वाले मरकज़ की जानिब से तमाम दफ़ात की मंजूरी के बाद होगा। इन्होंने मजीद कहा कि नए कानून ने किराएदार और मालिक के हकूक़ में तवाज़ुन कायम किया है। कानून के बाद दफ़ात किराएदार और दीगर मालिक के हक़ में हैं। अगर किराएदार ने किराया अदा न किया तो ऐसी सूरत में मालिक को एग्जीक्यूटिव जैसे रुजू करने का हक़ दिया गया है। सुल्तान बती ने तवज्जो दिलाई कि 3 बरस तक किराए में इजाफे पर पाबंदी की बदौलत दुबई में सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। जायदादें ज़्यादा से ज़्यादा किराए पर उठेगी और किराएदार चैन की सांस लेंगे। डायरेक्टर जनरल का कहना था कि नया कानून ऐसा है जिस पर दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों में पहले से ही अमल हो रहा है। इमारत के कई रियासतों में भी यह कानून राइज है। नाजरीन, उर्दून में मुफ्त कोरोना कोविड वैक्सीन प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया गया है। मुतासरीन की तादाद 3,05,959 हो गई है। उर्दून के वज़ीर सेहत ने कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम चंद दिनों में शुरू करने का ऐलान किया है। रॉयटर्स ने उर्दून की सरकारी खबर रसा एजेंसी के हवाले से बताया कि पीर 11 जनवरी को फाइजर बायोटेक वैक्सीन की पहली खेप के पहुंचने के बाद वैक्सीन प्रोग्राम शुरू होगा। चाइना फार्मास्यूटिकल ग्रुप सिनोफार्म के तैयार करदा वैक्सीन हफ्ते की रात पहुंच रही है। नाज़रीन, याद रहे कि उर्दून ने 3 जनवरी को कहा था कि इसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम से वैक्सीन के 10 लाख खुराकें और मज़ीद 20 लाख खुराकें खरीदने के लिए फाइजर और इसके शराकतदार बायोटेक के साथ मुआहदा किया है, जिसका मकसद गरीब और मुतवस्सित आमदनी वाले ममालिक में लोगों को वैक्सीन फराहम करता है। उर्दून के वज़ीर सेहत का कहना था कि हुकूमत मुल्क की 10 मिलियन आबादी के लिए मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करने का इरादा रखती है। इन्होंने कहा कि वैक्सीन प्रोग्राम में हेल्थ वर्कर्स और मुअम्मल अफराद को तरजीह दी जाएगी। उर्दून में नवंबर में कोरोना की दूसरी लहर के उरूज के बाद इन्फेक्शन में तेज़ी से कमी देखने में आई है। 10 मिलियन वाली आबादी वाले मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,05,959
959 हो गई है, जबकि 4000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के शहर उलुसल बलाद हैदराबाद में 28.38 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है। वहीं पर वजीर की जानिब से इंतबा दिया गया है कि डबल बेडरूम मकान फरोख्त करने या किराए पर देने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। बल्दी नज़्म नक्श KTR ने आज शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। असम्बली हल्के एलबी नगर में पीने के पानी के मसले को हल करने 2 बड़े असली ज़ख़ीरे तैयार हुए हैं। 2.5 ML गुंजाइश पर मुश्तमिल इन ज़ख़ायर आब की तामीर पर 9.42 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसका आज KTR ने इफ्तिताह किया और कहा कि इनसे तकरीबन 40 कॉलोनियों को 15,900 नल के कनेक्शन को पानी सरबराह होगा। दोमलगोड़ा जोनल डिप्टी कमिश्नर के कामों का और नारायणगोड़ा में मॉडर्न मार्केट की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला किशन रेड्डी, रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव और दूसरों ने शिरकत की। इसके अलावा एट केमेंट में नए तामीर कुर्दा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया गया, जिससे 2.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके साथ ही बाग लिंगमपल्ली के लंबाड़ी तांडे में 10.96 करोड़ रुपये की मसारिफ से तामीर कुर्दा 126 डबल बेडरूम मकानात का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर KTR ने डबल बेडरूम मकानात की तामीरात को चीफ मिनिस्टर KCR ड्रीम प्रोजेक्ट करार देते हुए कहा कि गरीब आवाम को इज़्ज़त नफ्स की ज़िंदगी फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने इस स्कीम को मुतारिफ कराया है, जिसकी मुल्क भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि अगर इस्तेफादा कुनिंदान की जानिब से उन्हें मुख्तस खुदा डबल बेडरूम मकान मनसूख किया जाता है तो पट्टा जात मनसूख करने का इंतबा दिया। KTR ने कहा कि मुल्क भर में 28 रियासतें हैं, मगर डबल बेडरूम मकान की स्कीम किसी भी रियासत में नहीं है। सारी रियासत में 18,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से 72,000 डबल बेडरूम मकान तामीर किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 1 लाख डबल बेडरूम मकान तामीर किए जा रहे हैं, जिस पर 974 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक डबल बेडरूम मकान पर 9 लाख रुपए के मसारिफ हैं। हुकूमत की जानिब से गरीब और बेघर अफराद को मुफ्त डबल बेडरूम मकान फराहम किए जा रहे हैं। नाजरीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। नाजरीन, अमेरिका में